अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, देरीना दुश्मनियों पे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म होना एक रिवायत है और पंजाब के देही इलाकों में ये रिवायत तसलसल के साथ बरकरार है। फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में थाना खुरड्यांवाला में पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए 11 साल से मफरूर 2 ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। ये मुल्ज़िमान इश्तिहारी कैसे डिक्लेयर हुए, इन लोगों से किन किन लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा था और कितनी जानें ये ले चुके हैं, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में खुरड्यांवाला का इलाका है, जहाँ पे चक नंबर 103 रेवे फलाही वाला में ट्रिपल मर्डर का एक केस होता है और उसी केस के इश्तिहारी मुल्ज़िमान पुलिस 11 साल के बाद अरेस्ट कर लेती है। कहाँ से ये कहानी शुरू होती है, ये खौफनाक दरिंदगी कैसे परवान चढ़ती है और इस गांव में जो है वो मुबैना तौर पे जो गैंग वार है ये कब से चल रहा है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा जो हैं वो भी मुतासरीन भी मौजूद हैं, जिनके प्यारे इसी दुश्मनी की नज़र हो गए और इन मुखालफतों की भेंट चढ़ गए। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा भाई। वालेकुम सलाम, मेरा नाम यकूब है जी। यकूब साहब, दस्यो कि ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਜੀ ਸਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੀਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਰਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਠੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸਟਲ ਗੰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰ ਮੋਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ 2-4 ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੇ ਆ ਰਲੇ ਸੀਗੇ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-4 ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, 2-4 ਖਾਨਦਾਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 2004 'ਚ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਤੇ ਕਤਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2004 'ਚ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਸਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ? ਮੇਰਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਸਰੁੱਲਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਹੀਰ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 25 ਸਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੁਣ 2024-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ? ਇਹ ਕੋਈ 35 ਤੋਂ 40 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਅਮਨ ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਲਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। 8-10 ਗਰੁੱਪ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਬੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ गिरफ्त 'ਚ ਲੈ आंदे। नाजरीन, मज़ीद जो मुतासरीन हैं इसी केस के मुद्दईयान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान, आपके भी कोई रिलेटिव जो हैं, आपके कोई रिश्तेदार भाई जो हैं वो कत्ल हुए इसमें? मेरा सका भाई कत्ल होया, अपना नाल कज़न है जी। कब की बात है ये? 2004 की। 2004 में आपके भाई को कत्ल किया जाता है। अब्दुर्रहमान, ये एक इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा लम्हा होता है जब इंसान जज्बात में आकर कहता है कि मैं इसका बदला लूँगा। आपने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और आज वो दिन है जब इसके आखिरी 2 मुल्ज़िमान भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। मुझे बताइएगा, ये दुश्मनी परवान क्यों चढ़ी? ये अपना शुरू ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, लेकिन वो ज़ालम है, शुरू तो ज़ालम नहीं। तो अभी पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है, आपको लगता है कि अभी इंसाफ पूरा होगा इंशाअल्लाह? जी इंशाअल्लाह। कभी ऐसा तो नहीं जहन में आया कि हमारा नुकसान हुआ है, हमारा भाई गया है, हमारा कज़न गया है, तो हम भी इनका नुकसान करेंगे? जी बिल्कुल जहन च आंदा जी, क्यों नहीं आंदा जी। भाई अपने सके कतल होया जी।
भी आपको लगता है कि अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ गए हैं तो कानून इनको खातिर खा जो है वो पूरी जो इनकी बनती है ड्यू सज़ा देगा? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर। नाज़रीन किराम, चकूक और देहात में शुरू होने वाली दुश्मनी 35 साल पे जिसका जो है वो अरसा मुहीत है, 35 साल में मकामी लोगों के मुताबिक 35 से 40 जानें इस दुश्मनी की नज़र हो चुकी हैं। 2 ग्रुप से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब 8 से 10 ग्रुप्स और ग्रोहों पे मुश्तमिल है। एक ग्रुप दूसरे के लोगों को कत्ल करता है तो दूसरा बदला लेने के लिए पहले ग्रुप को, और 2013 में होने वाला जो वाक़या था जिसमें 3 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसकी FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात भी शामिल की गई थी, उसके 2 मुल्ज़िमान जो बकाया थे वो 11 साल के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं और पुलिस के मुताबिक एक मजबूत केस फाइल करके इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग किए हुए है, जहाँ खुर्डियांवाला पुलिस स्टेशन में पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 11 साल के बाद ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान को जो है वो पुलिस ने धर दबोचा है, अरेस्ट कर लिया है। मुल्ज़िमान 11 साल पहले किन हालात से गुज़रे, कैसे ये वक़ूआ हुआ, किस तरह की FIRs इनके ख़िलाफ़ लॉन्च थी, पुलिस कब से इनकी तलाश में थी, कहाँ कहाँ पे इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो रेड्स किए गए और आखिरकार कहाँ से पुलिस ने इनको दबोचा, जानने के लिए हम इस वक्त पुलिस स्टेशन खुर्डियांवाला में मौजूद हैं और इस केस के IO हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर नईम ज़िया साहिब, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये जो ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान आपने गिरफ़्तार किए हैं 11 साल बाद, क्या था इनके ख़िलाफ़ जो है वो दफ़ात क्या थी, क्या इनके जुर्म क्या हैं और ये कहाँ रहे 11 साल? ये 9/1/2013 को 9:15 बजे के करीब फलाई में 103 रेब चाका इधर इन्होंने 8 बंदों ने फायरिंग करके 3 बंदों को बेदर्दी से कत्ल किया था, जिनके जिस्मों के ऊपर तकरीबन 70 जो हैं वो फायर लगे हुए थे। तो हुआ करने के बाद ये 8 के 8 बंदे ही फरार हो गए। तो मुकदमा दर्ज हुआ था 302, 148, 149 और 780 में। बाद में पुलिस जब इनको गिरफ़्तार करने के लिए जाती रही है तो ये इस कदर सख्त दिल थे कि ये पुलिस के साथ भी मज़ाहमत करते रहे। सारे ग्रुप के ख़िलाफ़ 10-10, 12-12 मुकदमा दर्ज थे। बाद में 2 जो मुल्ज़िमान हैं वो पुलिस मुकाबले में इनका इनकाउंटर भी हुआ है और फिर ये रुपोश हुए हैं सरगोदा और इस्लामाबाद में, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए सरगोदा और इस्लामाबाद रेड किए गए हैं और मुखबर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और जो केस कुएँ में मुलव्वस रहे हैं। अच्छा नईम साहब, बताइएगा कि आपने बताया कि ये 2 ग्रुप्स की आपसी जो है वो लड़ाई थी, दुश्मनी थी और उसमें जो है वो इन्होंने अटैक किया दूसरे ग्रुप पे और इस कदर शदीद अटैक था कि 3 अफराद की इतनी बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया कि उनके चेहरे भी शनाख्त करना मुश्किल हो गए थे। अच्छा, ये उसके बाद ये लोग रूपोश हो गए, इनके कुछ साथी जो हैं वो पुलिस इनकाउंटर्स में मारे भी गए हमारी इतलात के मुताबिक। किस तरह से इन्होंने जो है वो पुलिस को चकमा दिया, कहाँ कहाँ ये रहे, पुलिस ने कौन कौन सा जो है वो ज़रिया अपनाया, क्योंकि पुलिस का अपना एक नेटवर्क होता है, उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, जदीद वसाइल को वो बरूए कार लाते हैं, कुछ उनकी CDRs, कुछ उनकी लोकेशंस। इतना अरसा लगा पुलिस को और उसके बावजूद पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार ये 2 मुल्ज़िमान जो ख़तरनाक हैं इनको अरेस्ट कर लिया। आप बताइएगा कि कितना पुलिस को जो है वो चैलेंज रहा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। गांव में तो वो जो मदई हैं वो गांव छोड़कर चले गए हैं और वैसे भी इनका उधर इतना असर है कि कोई बंदा भी गांव से इन्फॉर्मेशन देने के लिए गुरेजा हैं। ताम हमने फिर भी मुखबरान भी मामूर किए हुए थे, फिर इलाके से मालूमात भी हासिल की हैं और सबसे ज़्यादा ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसकी मदद के साथ इसको ट्रेस करते रहे हैं और आखिरकार हम कामयाब हो गए और इनसे इंशाल्लाह हमने बरामदगी भी कर ली है। अच्छा, ये जो 2 मुल्ज़िमान आपने बताया कि आपने अरेस्ट किए हैं, इनके नाम बताइएगा। इनका नाम, एक का नाम है तारक, दूसरे का नाम है कयूम और ये भी उस वक्त ये 11 साल तक ये रहे हैं। PO ज़्यादा इनकी रिहाइश जो है इस्लामाबाद और सरगोदा साइड पे रही है। तो अभी हमने वो अपने तरीक़ाकार से CDRs वगैरह जो भी काम हम करते हैं, जियो फेंसिंग है, मुखबरान है, दाएं बाएं से हमने मदद ली है और हम इनको कामयाब हो गए। नईम साहब, बताइएगा कि एक शख्स जो PO होता है, यानी जिसे हम इश्तिहारी मुजरिम कहते हैं, वो भाग जाता है। ये लोग जो है ये 11 साल तक रुपोश रहे। आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा, इंटेरोगेशन की होगी इनसे,
تو 11 سال یہ لوگ اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں؟ کیا وہاں بھی یہ مختلف جرائم میں ملوث ہوتے ہیں یا کوئی بھیس بدل کے کہیں جابز کرتے ہیں؟ آپ نے ان سے جب پوچھا تو یہ 11 سال یہ کیسے گزارے انہوں نے؟ بھائی جان ان کے جو حقیقی بھائی تھے سکندر اور کیسر وغیرہ، ان کے خلاف 12 13 مقدمہ درج ہیں مختلف سنگین نوعیت کے، جن میں 302 324 اور ایون ڈکیٹی کے مقدمات بھی ہیں۔ پھر ان کے اوپر الزام تھا کہ وہ پیسے لے کر جو کرتے ہیں بتہ خوری کرتے تھے اور پیسے لے کر مخالفوں کو قتل بھی کرتے تھے، تو اس طریقے سے انہوں نے چلایا ہوا تھا سسٹم اپنا۔ اب ان کے خلاف جتنا ان کا ریکارڈ ہے پرانا، اور ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا مضبوط کیس پولیس فائل کرنے میں کامیاب ہوگی کہ یہ دوبارہ ان کو کوئی لوپ ہول نہ ملے اور یہ دوبارہ سے آ کے لوگوں کو اس طرح سے بے درے قتل نہ کریں؟ نہیں، وہ تو ہم نے سارا ریکارڈ ان کا چوز کر لیا، بلکہ پہلے ہی ہم نے نکال لیا ہوا تھا، سب میں یہ چلان ہوں گے، کوئی لوز پول ان کو نہیں ملے گا، انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی۔ اگر مدعی کمپرومائز نہیں کرتے تو وہ مدعی کی مرضی ہے نا، اگر معاف کر دیں تو پھر تو یہ فارغ ہو جائیں گے۔ جس طرح ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے دہشت اور سنسنی پھیلائی لوگوں میں، اور جس طرح ہمارا سسٹم ہے، ہماری سوسائٹی اس طرح ہے کہ کچھ پولیٹیکل پریشرز، کچھ خاندان قبیلوں کی مجبوریاں، گاؤں دیہات میں ویسے بھی لوگ ثالثی کے لیے بھی سامنے آتے ہیں، تو اگر ان کا آپس میں تصفیہ ہو جاتا ہے، صلح صفائی ہو جاتی ہے، تو پھر پولیس کے وہ 11 سال جو پولیس نے اپنے وسائل خرچ کیے، اپنا وقت دیا، اتنا ان کے پیچھے بھاگتی رہی، وہ کہاں جائیں گے؟ مدعی کو یہ تو اختیار ہے نا کہ وہ اپنا 302 کی وہ صلح کر سکتا ہے۔ 7-8 یا جو دوسرے مقدمات ہیں، جیسے ڈکیٹی کے ہو گئے یا بتہ خوری کے ہو گئے، ان میں تو ان کی صلح نہیں نہ ہوگی، وہ بیلیبل بھی نہیں ہیں اور وہ قابل صلح بھی نہیں ہیں، ان میں ان کو سزا ہونی ہے۔ ناظرین، انسپیکٹر نعیم ضیاء انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کیس کے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل آباد میں کھرڑیاں والا پولیس کی ایک بہت بڑی کارروائی ہے، جہاں 11 سال سے روپوش اشتہاری مجرمان کا نہ صرف سراغ لگایا گیا بلکہ پولیس نے ان کو گرفتار کر کے پابندِ سلاسل بھی کیا ہے، اور اب ان کے خلاف ایک مضبوط کیس پولیس فائل کرنے جا رہی ہے۔ یہاں پہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کہنا تھا کہ پولیس اپنے تئیں پوری کوشش کرتی ہے اور اس اثر کو بھی زائل کرنے میں اس کیس میں مدد ملے گی کہ ایسے اشتہاری مجرمان کو صرف انکاؤنٹر میں پار کیا جاتا ہے۔ پولیس اپنی محنت کرتی ہے اور جہاں پہ اریسٹ ہو سکتے ہیں وہاں پہ اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، فیصل آباد پولیس کی بڑی کارروائیوں میں سے ایک تھانہ کھرڑیاں والا کی کارروائی ہے، جس میں 11 سال سے اشتہاری ملزمان جو مفرور تھے ان کو پولیس نے گرفتار کیا۔ کیسے یہ سب کیا، کیسے اتنا پرانا کیس جو ہے اس کو پولیس نے پروب کر کے ملزمان کو اریسٹ کیا، ہم اس وقت پولیس اسٹیشن کھرڑیاں والا میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سب انسپیکٹر اعجاز رشید داڑ موجود ہیں جو SHO ہیں تھانہ کھرڑیاں والا کے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ 11 سال پرانا کیس، یہ گڑے مردے کیسے پولیس نے جو ہے دوبارہ اکھاڑے اور ان کو پابند سلاسل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ٹرپل مرڈر کا کیس تھا، اور ٹرپل مرڈر یا اس طرح کے جو بھی ہینیس نیچر کے کیسز ہوتے ہیں ان پہ افسران بالا کی نظر ہوتی ہے، تو جناب RPO صاحب CPO صاحب کی ہدایت پر یہ ایک اسپیشل ٹاسک تھا، اس پہ ہمیں فوکس کرنے کا حکم ملا، تو ہمیں کافی اس پہ محنت کرنا پڑی، اور چونکہ ٹرپل مرڈر تھا اور ملزمان 11 سال سے روح پوش تھے، اس لیے ہم نے جو ٹیکنیکل ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، جو زمینی وسائل جو پولیس کے اپنے سورسز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان ملزمان کا پیچھا کیا، تو وہ کچھ دیر گجرانوالہ میں ہمیں ان کا پتہ چلا، وہاں سے وہ روح پوش ہو گیا، تو وہ پھر کسی اور جگہ پہ چلے گئے، وہاں سے جڑانوالہ آ گئے، تو مطلب کافی محنت کے بعد پولیس نے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے افسران بالا کی ہدایت اور رہنمائی پر ان ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا۔ اعجاز بھائی، ہمارے ذرائع سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ملزمان اتنے شاطر تھے کہ ان کو شاید مہارت حاصل ہو گئی تھی پولیس کو چکمہ دینے میں۔ یہ یہاں سے اشتہاری ملزمان ڈکلیئر ہوتے ہیں، یہ سرگودا والی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، وہاں پہ پولیس ان کو فالو کرتی ہے تو یہ اسلام آباد چلے جاتے ہیں، پھر یہ گجرانوالہ میں سٹے کرتے ہیں۔ پورا پاکستان کھرڑیاں والا کی پولیس کو انہوں نے چکمہ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں ملزم جتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو ایک دن قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کس حد تک پولیس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ جب تعینات ہوئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو نئے کیسز ہیں ان کو بھی پولیس دیکھ رہی ہے، ساتھ جو پرانی انسٹرکشنز تھیں آپ کے اعلیٰ حکام کی ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ پیرالل میں نئے اور پرانے کیسز کو لے کر چلنا، اس دوران مشکلات کون کون سی آتی ہیں؟ سر، پولیس کی جو فیلڈ کی جاب ہے نا، یہ اس پہ کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں سے
कम से कम 18 घंटे अगर काम करें तब जाके आप अपने मामलात को ना। तो बाकी रही बात मुलजमान की, तो मुलजमान हमेशा से डिसीविंग एटीट्यूड रखते हैं, और ज़ाहिर है जो 11 साल तक रूपोश रहे हैं वो किस हद तक डिसीविंग एटीट्यूड रखते होंगे। उनके पास मारतें तो थी, लेकिन जो आजकल पुलिस के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जो है टेक्निकल ज़राए हैं और टेक्निकल वसाइल की, और पुलिस के अपने सोर्सेज भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि पुलिस से कोई भी बंदा, कोई भी क्रिमिनल, हार्ड क्रिमिनल जिसने इस लेवल का जुर्म किया और वो पुलिस से भाग जाए, ये हो नहीं सकता। अच्छा या साहब, ये बताइएगा कि अब जब ये गिरफ्तार हो चुके हैं तो जो एक स्पेसिफिक गांव है जहां पे दुश्मनी चलती हुई आ रही है, ज़ाहिर है 2 ग्रुप्स की लड़ाई थी आपस में, और जो मुद्दईयान हैं, जो मुतासरीन थे इन लोगों के, उन्होंने कुछ सुख का सांस लिया होगा, आपकी उनसे बात हुई है, क्या वो पुलिस की इस कोशिश को सराहते हैं, काविश से मुतमिन हैं, या अभी भी वो खौफ और हिरास का शिकार हैं? ज़ाहिर है जब इस तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, इस तरह के जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, जो रिनोन्ड इश्तिहारी होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो इसके बाद जो बाकी जो इश्तिहारी या जो इस नेचर का क्राइम करने वाले हैं वो सब एक दफ़ा जो है ना वो अलर्ट हो जाते हैं। और जहाँ तक मुद्दईयों की बात है तो पुलिस पहले भी प्रोटेक्ट करती है मुद्दई को, और नेक्स्ट भी हम जो है उनके साथ पूरा मतलब हमारा उनके साथ रब्ता भी है, और हम चाहते हैं कि इस केस को प्रॉपर परसू किया जाए। इस केस पे इन मुल्ज़मान की निशानदेही पर 2 अदद क्लशनकोफ भी रिकवर हो चुकी हैं जिन्होंने बवक्त वक़ूअ इस्तेमाल की थी। तो मेरा ख्याल में मुद्दई जो है ना बहुत ज़्यादा मुतमिन और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है मैं इस काम। इस कदर ये शफाक लोग हैं कि इस वक़ूआ के मैं FIR देख रहा था, लोगों से बात कर रहा था कि इन्होंने इस कदर शदीद फायरिंग की थी उन 3 कत्लों में कि चेहरे बिगाड़ दिए थे अपने मुखालिफिन के। 70-75 राउंड्स जो हैं वो एक शख्स पे उन्होंने फ़ायर किए। आपकी ज़ेर निगरानी अब तफ्तीश चल रही है, ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी बात हुई होगी, इन मुल्ज़िमान से भी बात हुई होगी। इनको अपने किए पे नदामत है? हमारी सोसाइटी में ये शर्मिंदा होने वाला कल्चर अभी भी ज़िंदा है, या अभी भी ये वहीं पे खड़े हैं कि जी हमें मौका मिला तो हम इनके और लोग मारेंगे? ज़ाहिर इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही है, और पुरानी दुश्मनी में फिर लोगों में शर्मिंदगी का अंसर जो है ना वो थोड़ा कम पाया जाता है। वो कहते हैं कि हमने बदला ले लिया, तो इस पर वो मुतमिन हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक खैर करे, जब सज़ा में जाएंगे तो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नदामत में चले जाएंगे, शर्मिंदगी होगी इनको। क्या पैगाम देंगे खुड़ियांवाला के लोगों को कि पुलिस और आवाम किस तरह मिलकर जो है वो जराइम पर काबू पा सकते हैं? आजकल कम्युनिटी पुलिसिंग है, और आवाम के बगैर जो है ना वो पुलिस, आवाम के ताउन के बगैर पुलिस का जो है ना वो इतना वो ग्रिप मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिक मुहैया करती है। तो हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है और पब्लिक भी हमारे साथ ताउन करती है। टाइमली इन्फॉर्मेशन से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मामला बहुत बेहतर हो जाते हैं। मैं पब्लिक से भी उम्मीद करता हूँ कि वो जब भी कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो वो पुलिस के साथ ताउन करे और रब्ता रखे। हमारे जो है वो 24 घंटे में हमारे फ़ोन कॉल, हमारे जो PTCL नंबर है, हमारे अफसरान के जो रब्ते हैं 24 घंटे में पुलिस अवेल होती है। किसी भी वक्त कोई मतलब इस तरह के नहीं कि किसी कॉल अटेंड ना की जाए। तो आवाम को भी चाहिए कि हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के जो है ना ऐसे गंदे लोगों को जो माशरे का नासूर हैं उनको जो है ना पाबंद सलासल किया जाए और उनको सज़ा दिलवाई जाए। नाजरीन, फैसलाबाद का थाना है खुड़ियांवाला, इसके एक नवाही चक 103 रेबे फलाही वाला में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात होती है, जिसमें 3 लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस कदर शदीद फायरिंग के इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की जाती हैं। कत्ल के ये मुल्ज़िमान फ़रार हो जाते हैं। इनके कुछ साथी जो हैं वो ऑलरेडी जुडिशल कस्टडी में हैं, वो जेल में हैं, कुछ पुलिस इनकाउंटर्स में मारे गए। और ये 2 लोग जो मफरूर थे, 11 साल के बाद पुलिस ने अपनी मेहनत, काविश, ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ इनको गिरफ़्तार किया है बल्कि इनके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस भी फ़ाइल किया है। और SHO खुड़ियांवाला का कहना था कि हम मुद्दईयान को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे ताकि वो ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर सकें। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस का सर्कल है खुड़ियांवाला, और बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस को हासिल इस तरह से हुई है कि 11 साल बाद ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। 11 साल ये लोग कैसे कैसे पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते रहे, कहाँ छुपे रहे, इस दौरान क्या कुछ हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं DSP सर्कल खुड़ियांवाला खुदा बख्श साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान जिन पे दहशतगर्दी की दफ़ात हैं, कत्ल की दफ़ात के तहत इन पे मुकदमात हैं, ये
कैसे अरेस्ट किए पुलिस ने और कहाँ से? थैंक यू जी। ये एक्चुअली 2013 में यहाँ पे ये 7 गांव है, फलाही गांव, वहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ था। तो उसमें ये लोग जो हैं वो फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल वर्किंग के थ्रू अपनी आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करते हुए और ह्यूमन इंटेलिजेंस के तहत इनके पीछे लगी रही है और पूरी एफर्ट करती रही है, इनको भूले नहीं है। और आफ्टर ए लॉन्ग वर्क जो है ये काबू आ गए हैं, पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया और इंशाल्लाह आगे जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अच्छा सर, बताइएगा कि एक पब्लिक परसेप्शन डेवलप हो गई है कि पुलिस हिम्मत हार जाती है। एक बंदा जो इश्तिहारी होता है 1, 2, 4 माह तक जो है वो उसका फॉलो अप लिया जाता है और उसके बाद भूल जाती है। इस स्पेसिफिक केस में पुलिस की अनथक मेहनत, हम उसे कहेंगे, पुलिस वाकई में शाबाश की मुस्तहिक है जिस तरीके से 11 साल एक केस को उन्होंने फॉलो अप किया। बताइएगा कैसी हर्डल्स बर्दाश्त करना पड़ी? पुलिस के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। हम डेली रिपोर्ट करते हैं कि कैसे पुलिस कभी फ्यूल से तंग आ जाती है, कभी रिसोर्सेज से, लिमिटेड से रिसोर्सेज में 11 साल तक मुलजिमान को ट्रैक करना और फिर उनको अरेस्ट कर लेना, क्या क्या हर्डल्स आए पुलिस को? ये आपकी बात ठीक है कि हमने पब्लिक परसेप्शन जो पुलिस के बारे में सो कॉल्ड उन्होंने माइंड बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि हम वो परसेप्शन जो है उसको काउंटर करें और पुलिस पूरी डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट के साथ जो है ऐसे हीनियस क्राइम्स जिसमें पब्लिक में एक फ़ियर भी क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में और इसके अदरवाइज़ बड़े रेपरकशंस हैं, बैड रेपरकशंस हैं, उनको काउंटर किया जाए। और इसी सिलसिले में ये जो मुकदमा है जिसमें पुलिस ने जान नहीं छोड़ी क्रिमिनल्स की, ये इन इटसेल्फ एक एग्जांपल है कि पुलिस जो है वो अपने तमाम वसाइल को बरूकार लाते हुए ऐसे मुकदमात को चाहे 20 साल भी गुजर गए हों, 30 साल भी, तो वो छोड़ती नहीं है, उनका पीछा करती है। और ये उसी तरफ ही उसी का एक रुख है जिसमें हम सारे एफ़र्ट्स कर रहे हैं, हमारे हाई अप्स भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे कोलीग्स भी कोशिश कर रहे हैं कि हमने पब्लिक परसेप्शन जो है उसको चेंज करना है और अपनी एफ़र्ट्स दिखा के जो फ्रूटफुल जो है रिज़ल्ट हैं वो दे के ये परसेप्शन ठीक करना है। अच्छा सर, एक बात पब्लिक परसेप्शन की हो रही है। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऐसे केसेस में पुलिस डे 1 से मेहनत शुरू करती है और तमाम जो दस्तयाब वसाइल हैं उनको बरूए कार लाती है, मेहनत करती है। जैसे इस केस में है, पुलिस 11 साल तक लगी रही, ट्रैक करती रही और आखिरकार इनको पाबंदे सलासल भी किया। अब एक पब्लिक में एक प्रेशर होता है सुलह के लिए, जैसे पुलिस की 11 साल की मेहनत है वो एक सेकंड में गारत हो जाएगी सिर्फ इसलिए कि मुद्दई मुकदमा पे प्रेशर आ जाए, वो डर जाएं, वो खौफज़दा हो जाएं। यही लोग जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान रहे, इन्हीं का कबीला, इन्हीं के लोग, इन्हीं का ग्रुप अगर उनको थ्रेटन करता है कि हम आपको ये इस अंजाम से दोबारा दो चार करेंगे, जो पीछे मुद्दईयान होते हैं वो पीछे ना हटें। इनकी जहन साजी के लिए, इन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है? जी एक्चुअली पुलिस एक दफ़ा ये कंक्लूड कर ले और इस नतीजे पे पहुंच जाए कि ये बंदा मज़लूम है और ये विक्टिम है, ये मुद्दई है और इसके साथ ज़्यादती हुई है, ये मज़लूम है, तो वंस ये डिसाइड हो जाए तो उसके बाद मज़लूम के साथ खड़ी हो जाती है और उसकी हर तरह की सपोर्ट करती है, फ़िज़िकल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन रखने के लिए जो पुलिस को जो मुख्तलिफ उसकी ट्रेनिंग में शामिल है उनको पूरी तरह इनकरेज रखते हैं और साथ उनकी प्रोटेक्शन की भी केयर करते हैं। और इसमें भी इस तरह ही होगा इंशाल्लाह कि हम मुद्दई को जो है वो पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे और कोई ऐसा प्रेशर इन पे आने नहीं देंगे। और दूसरा ये है, जब ये फ्रूटफुल ये रिज़ल्ट मिलता है तो मुद्दई इन इटसेल्फ इनकरेज हो जाता है कि पुलिस जो है वो बड़ी सिंसियर है। हम कम्युनिटी पॉलिसिंग के ज़रिए तो अपने जो गैप है पुलिस और पब्लिक के दरमियान वो तो ख़त्म कर ही रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड ऐसे हीनियस केसेस में विक्टम्स को साइकोलॉजिकली, विक्टम या मुद्दई या मज़लूम जो लोग हैं उनको साइकोलॉजिकली भी स्टेबल रखने के लिए मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और अदरवाइज़ भी दीगर प्रेशर से बचाने के लिए पूरी तरह पुलिस जो है उनके साथ खड़ी रहती है और पूरी सपोर्ट करती है। और दूसरा सर, ये जो देही इलाके हैं ख़ास तौर पे, जैसे ये खुड़ियावाला के नवाही इलाका है, चक नंबर 103 रेबे फलाई,
اور یہ بہت پرانی ایک دو گروپس میں دشمنی چلتی آ رہی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں اس دشمنی کے نتیجے میں. اور ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ, اس گاؤں کے ساتھ والے جو گاؤں ہیں وہ امن و امان اور شانتی کا گہوارہ ہیں. یہی ایک گاؤں ایسا ہے. انہی کے قبیلوں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پہ بہت سی دفعات کے تحت, کچھ لوگ ڈکیتی میں, کچھ مرڈر میں جو ہیں وہ PO بھی ہیں, کچھ اریسٹ بھی ہیں, پولیس ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے. کیا ایک ایسا جو ریڈ سرکل بن جاتا ہے ایک سرکل کے اندر, اس پہ اسپیشل فوکس نہیں ہوتا پولیس کا, یا ان کی کاؤنسلنگ, وہاں کے علاقے کے لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے کچھ خاص اقدامات کی ضرورت نہیں؟ جی بالکل, یہ جو میں نے پہلے ورڈ یوز کیا کمیونٹی پولیسنگ, یہ اس کا ہی ایک جزو ہے کہ جس میں پولیس کوشش کرتی ہے کہ ایسے ایریاز جہاں پہ, چونکہ رورل ایریاز میں لینڈ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, پولیٹیکل رائیولریز ہوتی ہیں, جن کی بنا پہ آگے جو ہے وہ اس ٹائپ کی مرڈرز یا اٹیمپٹ ٹو مرڈرز کے واقعات ہوتے ہیں, تو پولیس اس کو ضرور کاؤنٹر کرتی ہے. اور اس کے لیے یہ امن کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور مسالتی کمیٹی بنائی ہوئی ہیں. ایک تو کرمنلز کو اریسٹ کرتے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ان کے جو لوگ ہیں, اس سوسائٹی کے پرامن لوگ ہیں, ان کے توسط سے ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. فرسٹ آف آل تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ فیملی ڈسپیوٹس یا لینڈ ڈسپیوٹس یا جو ان کی پولیٹیکل رائیولریز ہیں ان کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے, اور اسی معاشرے کے اچھے لوگوں کے ذریعے اس پہ جو ہے نا وہ کیا جائے, کام کیا جائے. اور پولیس کر رہی ہے, کئی لوگوں کی صلح کروا رہی ہے. یہ جو پرانی دشمنی ہے بیسیکلی تو اس میں یہ ہے کہ جتنی ایجوکیشن اور اویئرنیس آئے گی اس سے یہ کاؤنٹر ہو گیا پہلے نمبر پہ. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے اپنا رول پلے کرے جس میں ریگارڈنگ صلح, یعنی آپس میں پارٹیز کی جو فریقین ہیں ان کی صلح کروائی ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ پوری طرح فوکس ہے کہ ایک تو پریونٹیو میئرز ہوتا ہے پولیس کے پاس, اور اپارٹ فرام دیٹ جو یہ امن کمیٹیاں ہیں اور علاقے کے جو معززین ہیں ان کو درمیان میں ڈال کر جو ریلیجیس جو ہیں نوبلز ہیں یا ادروائز جو ڈفرینٹ سیکٹس آف سوسائٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں جو تھوڑا سا افیکٹو ہیں, ان کو ساتھ لے کر جو ہے ان کی صلح کروائی جائے, اور وہ پوری طرح ایفرٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ کا سرکل سر اس لحاظ سے بھی بہت سینسٹیو ہے, کھوڑیاں والا سرکل جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ کی ٹیم نے یہ جو کاوش کی ہے یہ عوام کا پولیس پر ٹرسٹ بحال کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گی. کیا پیغام دینا چاہیں گے کھوڑیاں والا سرکل کے لوگوں کو, کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے, دور دراز سے لوگ یہاں پہ آ کے مقیم ہوتے ہیں انڈسٹری کی وجہ سے. کیا میسج کنوے کریں گے کہ عوام کا مزید پولیس پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو اور جرائم پہ قابو پانے میں مدد مل سکے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں RPO صاحب اور CPO صاحب کی پہلی ہماری جو کاؤنسلنگ ہے, جتنی جو فورس ہے ان کی یہی ہے کہ آپ کی مین جو ریسپانسبلٹی ہے وہ ہے فائٹ اگینسٹ کرائم, کہ آپ نے کرائم کو فائٹ کرنا ہے اور یہی پولیس کی اور پروٹیکشن دینی ہے لوگوں کو. تو جو احساس تحفظ جو ہے لوگوں میں کہ ان میں سینس آف پروٹیکشن آئے, اس کے لیے تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے ہم پوری طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ود ان ون ڈے کوئی کرائم آپ نے زیرو کر دینا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں انشاءاللہ کمی آتی جا رہی ہے, اور مزید اس سلسلے میں ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو پولیس سے ریلیونٹ جتنے جرائم ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے. اور اگر آپ لاسٹ ایئر کے فگر 2023 کے اور 2024 کے فیصل آباد میں اگر دیکھیں تو اس میں بڑا ڈینٹ پڑا ہے, اور RPO صاحب اور CPO صاحب فرما رہے تھے کہ 3400 راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ کرائم جو ہے اس کا ڈینٹ پڑا ہے ود ان 1 ایئر, اور انشاءاللہ 2025 میں اور زیادہ ڈینٹ ڈالنے کی وہ کمٹمنٹ اور ریزالو ہیں پولیس پوری طرح کہ ہم اس کو ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ. ناظرین, DSP سرکل کھوڑیاں والا خدا بخش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ کیسے پولیس نے اپنے وزڈم اور حکمت عملی سے 11 سال سے اشتہاری ملزمان جو ہیں چھپے ہوئے تھے ان کو اریسٹ کیا, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس اس سلسلے میں پرعزم ہے کہ اس علاقے کو ہر صورت امن کا گہوارہ بنایا جائے. ناظرین, آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ 35 سال قبل ایک معمولی تلخ کلامی سے شروع ہونے والی دشمنی کیسے 35 زندگیاں کھا گئی. کچھ لوگ پولیس کے ہاتھوں انکاؤنٹر میں مارے گئے, کچھ جیل کی کال کوٹڑی میں سزائے موت کے منتظر ہیں, اور کچھ اشتہاری پولیس نے گرفت میں لے لیے ہیں. اگر ہم اپنے رویوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں, عدم برداشت کو ترک کر کے برداشت لے کے آئیں,
تو ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ اور یگانگت کو پروان چڑھانے کی اشد ضرورت ہے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.